Let us quickly revise diffraction. When an obstacle having size of order of wavelength of light, that means obstacle is very small and it is placed in the path of light, then light, instead of moving in a straight line, bends at the edge of obstacle and enters into the shadow region, which otherwise is formed when light moves in a straight line. Bending of light at the edge of obstacle, which is very small, is called diffraction. Now, how this diffraction occurs? When this slit, which is very small, and I have explained this with help of a fine slit which is made of blades. You can go to playlist and you can see that experiment in which a very fine slit with the help of the blade is formed and a laser beam is allowed to fall on this slit. Then the plane wavefront incidence over the slit. A part of wavefront is obstructed by the slit and a part is exposed towards the screen. Now, secondary wavelets are originating from the exposed part of the wavefront according to Huygens postulates, and the secondary wavelets interfere at the screen. And this diffraction pattern is formed. In the diffraction pattern, you can see that central maxima, which is a bright patch, is there. Then dark minima, that is, the secondary wavelets are interfering at these 2 points destructively, and then faint maxima. So, maxima minima pattern is obtained, which is called diffraction pattern, and instead of getting a bright light in front of the slit, we have a bright and dark fringe pattern with different intensity. Central maxima is intense, while secondary maxima, which are these maxima, are faint. So what we say, that when a wavefront is partially obstructed, secondary wavelets originating from exposed wavefront interfere on the screen and produce diffraction pattern. Similarly, if we place a very fine wire in path of laser beam, then instead of getting a fine wire's shadow on the screen, we get maxima minima pattern, and light bends at the sides of the wire and enters the shadow region of the wire, and in place of the shadow of the wire we get very bright central maxima and then faint maxima minima pattern. So we say that if the obstacle like a very fine wire is placed in the path of light, laser beam, wavefront of light will be partially obstructed. Again, secondary wavelets originating from unobstructed wavefront at the 2 sides will superimpose on the screen and will produce diffraction pattern. Now, as we have seen that in 2017, what is diffraction? This question is asked. So, definition of diffraction is very important. Then there are 2 types of diffraction, Fresnel's diffraction and Fraunhofer's diffraction. And in our syllabus, it is Fraunhofer's diffraction. What is Fresnel's diffraction? When source of light and a screen or any one of them are placed at finite distance from the obstacle, slit or wire, then diffraction taking place is called Fresnel's diffraction. When source and a screen are from obstacle at infinite distance, then diffraction is called Fraunhofer's diffraction, and this is in our syllabus. Now, Fraunhofer's diffraction takes place when source and a screen are at infinite distance. To perform it in lab, we use a convex lens. At focus of convex lens, the source is placed. So, the parallel beam or parallel light is refracted towards the slit, and we can say that source is effectively at infinite distance. Similarly, a lens is used very close to slit, and when rays are incidenting over the lens, the parallel rays are focused at the slit, at the screen. So effectively, we don't have to put the screen at infinite distance, but this lens helps rays to make them interfere at the screen, which is placed at finite distance only. This is the experimental setup, and the question, very important question asked, which type of wavefront incidence over the slit in Fraunhofer diffraction? Always remember, since source is effectively at infinite distance, so we will say that plane wavefront incidence on the screen in Fraunhofer diffraction. Now this is very important topic of diffraction in 2001. This whole derivation is asked. इस साल भी काफी important है. Condition for first minima, या इसको हम expand कर सकते हैं condition for nth minima. क्या करेंगे? सबसे पहले स्लिट को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर लेंगे और फिर दोनों हाफ की जो टॉप पॉइंट है वहां से एक रे यहां पहुंचती हुई कंसीडर करेंगे. अब आपने अगर वो स्लिट देखी है जो मैंने एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाई है 2 ब्लेड की एजेस के बीच में, तो आप समझ सकते हो कि ये स्लिट बहुत फाइन है. कितनी फाइन? इनफैक्ट इन 2 पॉइंट से भी ज्यादा क्लोज है दोनों एजेस ब्लेड की, और जिस पॉइंट पर हम स्क्रीन रखते हैं वो उसके कंपैरिजन में बहुत डिस्टेंस पर है.
तो जो दो रेज टॉप और बॉटम ऑफ द स्क्रीन से चलेंगी, इस एंड और इस एंड से, वो कितनी कम एंगल पर मिलेंगी ये आप देख सकते हो। तो प्रैक्टिकली ये दोनों वेव्स 0 एंगल पर मिल रही हैं P पर। तो हम कह सकते हैं कि दोनों वेव्स AP और CP ये दोनों पैरेलल टू ईच अदर हैं। तो अगर हम स्क्रीन को दो हाफ्स में डिवाइड करते हैं तो दोनों के बीच की विड्थ जिसको हम अल्फाबेट A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस जिसको हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल D इज वेरी वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू द स्लिट विड्थ एंड स्लिट विड्थ इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्लिट विड्थ है ये 1 मिलीमीटर का हाफ भी हो सकती है, लेकिन जो वेवलेंथ लाइट की है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच है। तो यू कैन इमेजिन कि ये A लेमडा से बहुत ज्यादा बड़ा है और ये D स्मॉल d से या A से बहुत ज्यादा बड़ा है। तो यहां पर हम दो इंपॉर्टेंट अप्रोक्सीमेशंस अप्लाई करते हैं। पहला तो ये कि ये जो दो रेज इन दोनों हाफ के फर्स्ट पॉइंट से निकल रही हैं ये ऑलमोस्ट पैरेलल हैं, AP और BP। ये एंगल लगभग 0 है। अब आप देखो कि मान लो कि ये जो पोजीशन है सेंटर में तो मैक्सिमा मिलेगा, हमने देखा। अब ये मैक्सिमा कितना चौड़ा है, इसके लिए हमको इन दो मिनिमा की पोजीशन चाहिए क्योंकि उसके बीच का ही हिस्सा विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा होगा। तो ये जो मिनिमा है ये पहला मिनिमा हमें कैसे मिलेगा, हम मानेंगे कि ये दो रेज यहाँ पर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी तो यहाँ मिनिमा मिलेगा। तो इन दो रेज के डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस λ/2 के बराबर होना चाहिए पहला मिनिमा पाने के लिए। तो हमने कहा कि मान लो ये पोजीशन सेंटर से थीटा एंगल पर है। अब क्योंकि ये दोनों रेज पैरेलल है तो इसका भी हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा और इसका भी थीटा। अब हमने ये दो पैरेलल रेज हैं और अगर ये पता करना है कि कौन सी रे दूसरे से कितनी लंबी है तो छोटी रे से लंबी रे पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अब परपेंडिकुलर में ध्यान करो ये एक ट्राइंगल मिल गया जिसे मैं शेड कर देती हूं। अब इस ट्राइंगल में ध्यान से देखो ये थीटा एंगल है और ये 90, तो ये वाला एंगल होना चाहिए 90 माइनस थीटा। अब ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल शेडेड ट्राइंगल में थीटा हो गया। अब ये ओपनिंग जो है ये A यूनिट की है तो ये A/2 हो गया हाफ पार्ट। तो इतना पार्ट जो परपेंडिकुलर अलग कर रहा है कि ये है इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस, ये हो जाएगा A/2 साइन थीटा। तो A/2 साइन थीटा को λ/2 के बराबर होना चाहिए अगर यहां पर ये दोनों वेव्स डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करें। इसी तरह से इस लाइन इस रे के बाद दूसरी रे के लिए यहाँ कोरस्पॉन्डिंगली एक रे होनी चाहिए और वो दोनों रेज भी यहाँ पर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी अगर ये दोनों रेज डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही हैं, बिकॉज दीज रेज आर ऑलमोस्ट पैरेलल बिकॉज ऑफ द अप्रोक्सीमेशन। तो यहाँ फर्स्ट हाफ के हर पॉइंट पर एक रे ऐसी होगी जिसको कोरस्पॉन्डिंगली सेकेंड हाफ से एक रे मिलेगी जो यहाँ उसको डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करके डिस्ट्रॉय करेगी। और इस तरह से फर्स्ट हाफ की सारी रेज सेकेंड हाफ की सारी रेज से डिस्ट्रॉय होंगी और हमको यहाँ पर डार्कनेस मिलेगी, डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस मिलेगा। तो इस लॉजिक से पाथ डिफरेंस A/2 साइन थीटा जब λ/2 के बराबर होगा तो हमें पहला मिनिमा मिलेगा। इसको हम नोट करते हैं। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोक्सीमेशंस हैं जो कि प्रैक्टिकली बिल्कुल सही हैं। और अब हम लिखते हैं A/2 साइन थीटा और 1 लगा देते हैं क्योंकि पहला मिनिमा मिल रहा है। तो A/2 साइन थीटा 1 यानी थीटा 1 एंगल पर एंगुलर पोजीशन पर हमको पहला मिनिमा मिल रहा है इस कंडीशन से। तो अब 2 कैंसिल हो जाएगा तो A साइन थीटा 1 विल बी इक्वल टू λ। तो जस्ट अपोजिट टू इंटरफेरेंस इन डिफ्रैक्शन मिनिमा पहला मिलेगा फॉर A साइन थीटा 1 इक्वल टू λ। A है स्लिट की विड्थ जो ओपन है और λ है वेवलेंथ ऑफ लाइट जो इंसिडेंट हो रही है और थीटा 1 है एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। तो हमने यहाँ पे वो लॉजिक भी लिख दिया है जिससे ऊपर वाला हाफ नीचे वाले हाफ से डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहा है एट पोजीशन थीटा 1। एनालिटिकल मेथड में सेकंड मिनिमा के लिए हम स्लिट की विड्थ को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हर पार्ट का फर्स्ट पॉइंट लेते हैं और वहां से P2 पर मानते हैं कि वेव्स डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी अगर पाथ डिफरेंस इनके बीच का λ/2 होगा। क्योंकि हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो ऑलरेडी हमने पाथ डिफरेंस में सेकंड मिनिमा के लिए इस कंडीशन को इन्वॉल्व कर लिया है कि 4 पार्ट्स हैं तो जो पाथ डिफरेंस आएगा वो A/4 साइन थीटा आएगा, जैसे पिछले लॉजिक में हमने A/2 साइन थीटा निकाला था। तो थीटा 2 एंगुलर पोजीशन पर 4 इक्वल पार्ट्स में हर टॉप पॉइंट से निकलने वाली वेव्स यहाँ पर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी जब पाथ डिफरेंस A/4 साइन थीटा 2 इस जगह पर पहुंचने वाली रेस के बीच λ/2 होगा। तो हर रे विच इज इमर्जिंग फ्रॉम अपर हाफ
is destroyed by the wave emerging from lower half because every ray is having path difference a by 4 sin theta 2 and that is equal to lambda by 2. Similarly, थर्ड पार्ट के हर रे फोर्थ पार्ट के एक किसी रे से डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही है और यहां पर हमको एक डार्क पॉइंट मिल रहा है क्योंकि ये दो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ये दो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं. तो हमने दूसरे मिनिमा की कंडीशन लिखी फॉर द सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंडरी मिनिमा a by 4 sin theta 2 is equal to lambda by 2. तो a sin theta 2 is equal to 2 lambda, यानी थीटा 2 एंगुलर पोजीशन पर अगर a sin theta 2 इक्वल टू 2 लैम्डा ये सेटिस्फाई हो रहा है तो हमें थीटा 2 पोजीशन पर सेकेंडरी मिनिमा मिलेगा. सिमिलरली वी कैन से दैट a sin theta n कैन बी रिटन एज इक्वल टू n लैम्डा इफ वी वांट टू नो द पोजीशन ऑफ nth मिनिमा. तो इस तरीके से nth मिनिमा की कंडीशन हमने एनालिटिकली लॉजिकली डिराइव करी और हमने कहा कि ये तो बिल्कुल इंटरफेरेंस से ऑपोजिट कंडीशन है क्योंकि इंटरफेरेंस पे पाथ डिफरेंस n लैम्डा होने पे हमें ब्राइटनेस यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा था. नाउ यू विल फाइंड दैट सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ पर ही सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं. तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कितनी होगी? अगर हम ये थीटा एंगल यानी वो पोजीशन पता कर लें जहां पर पहला मिनिमा मिल रहा है तो थीटा 1 ऊपर यहां पर पहला मिनिमा, थीटा 1 नीचे यहां पर पहला मिनिमा और इन दोनों के बीच में ये विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा दैट इज 2 थीटा. तो थीटा 1 के लिए हमने कहा कि a sin थीटा 1 इज इक्वल टू लेमडा. ये है ना पहले मिनिमा की कंडीशन. तो sin थीटा 1 इज इक्वल टू लेमडा बाई a. अब हम जानते हैं कि जो विड्थ की स्लिट की विड्थ है वो लेमडा से बहुत बड़ी है कंपैरिजन करें तो असल में ये जो वैल्यू है ये बहुत बहुत छोटी है. तो sin थीटा 1 approximately can be written as theta 1 and which in turn can be written as tan theta 1 अगर थीटा 1 बहुत छोटा है जो कि है. तो हमने थीटा 1 को लिखा लेमडा बाई a और अब ये 2 थीटा 1 इक्वल टू हो गया 2 लेमडा बाई a विड्थ ऑफ एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा. अब अगर हम एंगुलर विड्थ की जगह स्क्रीन पे विड्थ निकालना चाहें तो अब इस शेडेड पार्ट में देखो अगर पहला मिनिमा y डिस्टेंस पर है सेंटर से तो sin थीटा 1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा 1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लेमडा बाई a. तो tan थीटा 1 इन दिस ट्राइंगल इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस y अपॉन d. सो लेमडा बाई a इज इक्वल टू y अपॉन d. तो y है पहले मिनिमा की पोजीशन सेंटर से लेमडा d बाई a. तो विड्थ हो गई 2y दैट इज 2 लेमडा d बाई a. अब इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो बहुत सिंपल है. विड्थ इज डिपेंडिंग अपॉन लेमडा एंड a. तो अगर आप लेमडा को इंक्रीज करेंगे, वॉयलेट से रेड की तरफ जाएंगे तो विड्थ इंक्रीज करेगी. लेकिन अगर आप स्लिट की विड्थ को हम पतला करते जाएंगे, ए को कम करेंगे तो सेंट्रल मैक्सिमा बहुत चौड़ा होता जाएगा. मतलब स्लिट को आप जितना पतला करेंगे सेंट्रल मैक्सिमा बजाय कम होने के और चौड़ा होता जाएगा और बहुत फाइन स्लिट के लिए सेंट्रल मैक्सिमा पूरी स्क्रीन पर स्प्रेड कर जाएगा. अब सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए एनालिटिकली हमने जो लॉजिक लगाया, जो उससे फॉर्मूला निकाला और उसे यूज किया और फॉर्मूले को वेरीफाई किया वो सही निकला. वो ये है कि हम स्क्रीन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. मान लो कि थीटा डैश एंगुलर पोजीशन पर, ध्यान से सुनना, इस पार्ट की सारी वेव्स इस पार्ट की वेव्स के साथ डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करके एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं. लेकिन तब भी ये जो थर्ड पार्ट है इसकी वेव्स यहां तक पहुंचेंगी और क्योंकि 1/3 इंटेंसिटी यहां पहुंच रही है तो यहां पर एक फेंट मैक्सिमा मिल जाएगा. इस लॉजिक को यूज करके हमने सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए कंडीशन ली है. तो क्या है कंडीशन? कि 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. ये 2 पार्ट्स ऐसे हैं कि पाथ डिफरेंस a बाई 3 साइन थीटा डैश लेमडा बाई 2 के बराबर है और यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है. सिर्फ इस पार्ट की जो लाइट रेज है वो यहां तक पहुंच रही हैं और सेकेंडरी मैक्सिमा दे रही हैं, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा. तो इस कंडीशन को लिखते हैं a बाई 3 साइन थीटा डैश इज इक्वल टू लेमडा बाई 2. सो a साइन थीटा इज इक्वल टू 3 लेमडा बाई 2. ये है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन. जबकि लेमडा बाई 2 का ऑड मल्टीपल इंटरफेरेंस में मिनिमा की कंडीशन होता था. सिमिलरली स्क्रीन को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे यानी ऑड पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए a साइन थीटा डबल डैश पोजीशन पर जो कंडीशन आएगी वो होगी 5/2 लेमडा. तो हम कह सकते हैं कि nth सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए थीटा डबल डैश n पोजीशन पर a साइन थीटा n डबल डैश शुड बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2. तो ये nth सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन है डिफ्रैक्शन में. Well, now this is, I think, most important part of this chapter. The intensity distribution curve for diffraction. मतलब जो इंटेंसिटी लाइट एनर्जी की इस पार्ट में स्क्रीन के रीडिस्ट्रीब्यूट करती है खुद को,
because of the interference of the secondary wavelets originating from the unobstructed wave front. वो किस पार्ट में, किस पोजीशन में कितनी है, और मैक्सिमा जो सेंट्रल मैक्सिमा जिसमें कि लगभग सारी एनर्जी कॉन्सेंट्रेटेड है, दैट सेंट्रल मैक्सिमा लाइज बिटवीन लैम्डा बाई ए टुवर्ड्स दिस साइड फ्रॉम द सेंटर to lambda by a towards this side from the center. This is angular position, and if you want this distance, then this is lambda d by a, where d is distance of screen from the this slit. Then minima, since first minima is at lambda by a, so we decided that central maxima is having angular position 2 lambda by a. Then the second minima is at 2 lambda by a. The third minima as is at 3 lambda by a, and position of first secondary maxima will be 3 by 2 lambda by a. This will be at 5 by 2 lambda by a at this side also and at this side also. So this is intensity distribution curve, and if we observe it in a proper orientation along with the photograph of the distribution pattern on the screen, as you can see in the my experiment also, this is the central maxima, this is central maxima, and these are secondary maxima and the positions as I told you here, right? So this is very important curve to be learned. You can observe how many times this graph is being asked, and this is resultant intensity on the screen with expression I naught, that is the maximum intensity, sine square beta upon beta square, where beta is expression pi upon lambda b sine theta, where b is the slit width. Since we are using a, so I shall write it here a, sine theta, where theta is angular position of this intensity, where we are finding this intensity, that angular position theta is here from the center, and lambda is the wavelength. Now come to previous year questions. I will not discuss all the questions because numericals are almost same. So PDF of this notes will be uploaded on my Telegram channel, and the Telegram channel's link will be flashed here. And I will give that link in the description box also, because all my notes are uploaded there. You can download from there. So question number 1, which is asked in 2002 and then repeated in 2016. Wavelength is given, slit width is given, and you are asked to find width of central maxima. Now observe how you are supposed to solve it. Width of central maxima will be given with the expression of the position of the first minima, angular position. A sine theta is lambda. This is the condition for first minima. So sine theta is lambda by a. Calculate it here and you will get it 0.5. Sine theta is half, that means theta is 30. So if we are giving the answer in degrees, then 2 theta will be the angular width of the central maxima, that is 60 degree. Now come to second question. Lambda is given, angular width is given this time, and you are asked to find the slit width. So sine theta is lambda by a. So sine 30 is 500 into 10 to the power minus 9 upon a. Why sine 30? Because central maxima width is 60. It is 2 theta, that is 60. So theta is 30, and that way this a is calculated. 1 into 10 to the power minus 6 meter. Now next question, 2004. This question was of 2008. Lambda is given. First minima was at 5.2 degree theta 1. Find slits width and angular position theta 2, at which second minimum is found. Calculate angular width of central maxima also. Again we will use the same formula. Sin theta 1 is lambda by a. So a is lambda upon sin theta 1. Value substitute करी और a की value निकाल ली. Then angular position of second minima. हमें पता है a sin theta 2 will be equal to 2 lambda for second minima. Theta 2 is position of second minima. तो values रखी यहाँ पर और sin theta 2 की value से theta 2 की value निकाल ली. Angular width of central maximum will be twice the theta 1. Theta 1 is angular position of first minima. Then 2006, determine angular separation between central maxima and first order maxima. Slit width इतनी है और angular position first order maximum का given होता है इस फॉर्मूले से. तो यहाँ पर हम sin theta is equal to 3/2 lambda upon a करेंगे. lambda की और a की वैल्यू कैलकुलेट करके sin theta की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. इससे sin theta की वैल्यू से theta की वैल्यू आ जाएगी रेडियन में, है ना. अब क्योंकि जो पोजीशन फर्स्ट मैक्सिमम की है सेंटर से, वही सेपरेशन है फर्स्ट मैक्सिमम का और सेंट्रल मैक्सिमम का,
तो इसलिए जो पोजीशन फर्स्ट मैक्सिमम की है दैट इज थीटा, दैट विल बी द सेपरेशन ऑल्सो, सो दिस विल बी द आंसर. Again see in 2000, slit width lambda is given, calculate half angular width of the central maximum, that is only theta is being asked. So the same way you have to solve this question. So you can see that actually same type of questions are asked in numerical part. 2005 slit width is given, lambda is given, angular width is asked, and here is the solution. Now come to reasoning questions. What type of source is used in front of a diffraction and what is its position? 2017, and for me it is very important and probable question for this year also. Monochromatic source is used and effectively it is at infinity. Effectively means with help of convex lens we can make it effectively at infinity. Next question, this is asked so many times. So according to me this is very important for this year also. What happens to diffraction pattern when another parallel slit is made close to the first slit? And the second question, difference between interference and diffraction. So actually we have to discuss the answer of these two questions together. First, difference between interference and diffraction. Interference is modification of intensity of light. Modification means bright and dark fringes are the places where the whole energy is and the dark place where no energy, light energy is. So it is redistribution of energy of light because of the interference. So interference is modification of intensity of light due to superposition of secondary wavelets originating from the two coherent sources. But diffraction is interference of secondary wavelets. कहाँ से originate हो रही हैं? Originating from same wavefront. Here it is coming, the secondary wavelets are coming from two sources. But here the secondary wavelets are originating from same wavefront when it is partially obstructed by an obstacle. तो जो part obstruct नहीं हो रहा है वहां सेम वेव फ्रंट के उस पार्ट से जो सेकेंडरी वेवलेट्स चलती हैं, जब वो इंटरफेयर करती हैं तब हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है. देन इंटेंसिटी ऑफ ऑल ब्राइट फ्रिंजेस इन इंटरफेरेंस पैटर्न इज सेम, width is also same, while most of the intensity is concentrated in central maxima in diffraction pattern, and we have seen it, and the intensity goes on decreasing in successive bright fringes. Third difference is there is good contrast between bright and dark fringes in interference pattern, while there is poor contrast between bright and dark fringes in diffraction pattern. So now let us come to main point. Actually, when another parallel slit is opened near the slit, then interference pattern is superimposed over diffraction pattern. एक स्लिट खुली रहती है तो डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व होता है. दो स्लिट खोल दें बहुत पास पास तो दोनों का डिफ्रैक्शन पैटर्न, क्योंकि स्लिट्स बहुत फाइन है तो उन दोनों स्लिट्स का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो स्क्रीन पे अपीयर होता है. जो स्लिट्स है वो इतनी फाइन है कि जो उनका सेंट्रल मैक्सिमा है दोनों स्लिट्स का वो ओवरलैप करता है, और दोनों के इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पैटर्न का ओवरलैपिंग होता है, और दो स्लिट्स के डिफ्रैक्शन पैटर्न ओवरलैप होकर रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं एनर्जी का इंटरफेरेंस फिनोमेना में. जो सेकेंडरी वेव्स एक स्लिट से आ रही हैं और जो सेकेंडरी वेव्स दूसरी स्लिट से आ रही हैं वो उस सेंट्रल मैक्सिमा के जोन में जो दोनों ही स्लिट्स के पैटर्न में था और जो अब ओवरलैप कर रहा है क्योंकि वो बहुत चौड़ा है, तो दोनों का सेंट्रल मैक्सिमा एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहा है. उस रीजन में जहां की सारी लाइट एनर्जी कॉन्सेंट्रेटेड है वहां पर सेकेंडरी वेवलेट्स कमिंग फ्रॉम सोर्स 1 एंड सोर्स 2, स्लिट 1 एंड स्लिट 2 आर redistributing their energy because of interference, constructive and destructive, and that interference pattern is superimposed over the diffraction pattern. सेंट्रल मैक्सिमा की सारी एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होकर हमको ब्राइट और डार्क इक्वल थिकनेस की फ्रिंजेस देते हैं, जहां ब्राइटनेस की इंटेंसिटी लगभग सेम दिखती है, और वो किससे डिटरमाइन होती है? डिफ्रैक्शन पैटर्न के इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से. चलो इस बात को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं. ये एक स्लिट ओपन थी, इसका डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा था, और जब दूसरी स्लिट ओपन कर दी गई बहुत पास में, और दोनों स्लिट्स बहुत फाइन हैं एंड दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, वेरी क्लोज, दैट मीन्स पार्ट ऑफ 1 मिलीमीटर इवन. ठीक, आप इन दोनों को अलग अलग नेकेड आई से देख भी नहीं पाएंगे, ये इतनी पास है. तो दोनों का सेंट्रल मैक्सिमा ओवरलैप करता है, और हमको सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन दोनों स्लिट के ओपन होने पर कुछ ऐसी दिखेगी. अब दोनों से जो सेकेंडरी वेवलेट्स पहुंच रही हैं वो यहां पर इंटरफेयर करती हैं और ब्राइट और डार्क यानी मैक्सिमा और मिनिमा देती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस.
लेकिन इंटेंसिटी इसकी जो डिफ्रैक्शन पैटर्न की इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उससे गवर्न हो रही है, देखो। पर ये इतना ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है कि ये इंटेंसिटी का चेंज हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो सेंट्रल मैक्सिमा जो डिफ्रैक्शन पैटर्न का है एक्चुअली वो स्क्रीन पे स्प्रेड रहता है और वहां हमको ब्राइट और डार्क इक्वल थिकनेस की फ्रिंजेस मिलती हैं। जो ब्राइटनेस है वो ऑलमोस्ट सेम इंटेंसिटी की मिलती है। तो हम आंसर कैसे करेंगे? व्हेन टू स्लिट्स आर ओपन्ड इन प्लेस ऑफ ओनली वन स्लिट, then interference pattern superimposes over the diffraction pattern, and intensity of interference pattern is determined by intensity distribution of diffraction pattern, and that we can see in the photograph of interference pattern. Almost सारी की सारी लाइट एनर्जी सेंट्रल मैक्सिमा पर है और यहीं पे आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखेगा और इंटरफेरेंस पैटर्न भी। डिफ्रैक्शन पैटर्न का ये सेंट्रल मैक्सिमा है और साथ में इसके सेकेंडरी मैक्सिमा है जो बहुत फेंट है। इन मैक्सिमा में आपको इंटरफेरेंस पैटर्न सुपर इम्पोज दिखेगा, इन मैक्सिमा में भी इंटरफेरेंस पैटर्न सुपर इम्पोज है, पर ये इतनी फेंट है कि आपको यहाँ क्लियर नहीं दिखेगा। तो ये है व्हाट विल हैपन इफ द टू स्लिट्स वेरी क्लोज टू ईच अदर आर ओपन। वी विल आंसर like this. Now similarly, this question, what happens when white light is used in place of monochromatic light in Young's double slit experiment or in single slit diffraction pattern? This is also important question. So in place of monochromatic light, if white light is used, then at the center all wavelengths will interfere constructively because path difference between them will be zero. So we will have white bright fringe at the center in interference pattern and white central maxima in diffraction pattern. On both sides of the white central fringe, we will have colored fringes because each wavelength will have its own interference or diffraction pattern. And at the end, this question which will make the whole concept of diffraction and interference very clear to you. In Young's double slit experiment, if distance between two slits is 1 millimeter, find width of each slit so that 10 maxima of interference lie within central maxima of diffraction. अब इसको देखो, दोनों स्लिट्स ओपन है, ठीक है। इंटरफेरेंस पैटर्न डिफ्रैक्शन पैटर्न पर सुपर इम्पोज्ड है और हमें मतलब है सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न से। तो सेंट्रल मैक्सिमा डिफ्रैक्शन पैटर्न का डिफ्रैक्शन के फर्स्ट मिनिमा से इस साइड में, डिफ्रैक्शन के फर्स्ट मिनिमा तक इस साइड में फैला हुआ है, ठीक। तो फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन हमको कैसे मिलती है डिफ्रैक्शन पैटर्न में? ये अगर आप डिस्टेंस की पोजीशन ले तो डिस्टेंस y इज इक्वल टू लेमडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, इस साइड में भी और इस साइड में भी। लेकिन इतनी डिस्टेंस में इंटरफेरेंस के 10 मैक्सिमा है, तो 10 मैक्सिमा का मतलब 5 ऊपर होंगे और 5 नीचे होंगे, सिमेट्रिकल है ये डिस्ट्रीब्यूशन कर। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर 5th मैक्सिमा इंटरफेरेंस का और यहाँ पर भी 5th मैक्सिमा इंटरफेरेंस का। तो इंटरफेरेंस का 5th मैक्सिमा का पोजीशन कैसे मिलता है? That is position of 5th maxima of interference, path difference for 5th maxima it will be 5 lambda into capital D upon small d. Small d दो स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस है। तो अब पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा एंड पोजीशन ऑफ 5th मैक्सिमा ऑफ इंटरफेरेंस ये कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो ए की वैल्यू मिल जाएगी। देखो इस तरह से 10 मैक्सिमा इंटरफेरेंस के सेंट्रल मैक्सिमा में आ रहे हैं डिफ्रैक्शन के, तो फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन और 5th मैक्सिमा ये एक ही जगह तक पहुंच रहे हैं स्क्रीन पे, तो इनको इक्वेट करेंगे तो हमको ये मिल जाएगी स्लिट विड्थ की पोजीशन। ऑल माय नोट्स आर अपलोडेड एट माय टेलीग्राम चैनल. The link is flashing here also, and the link will be given in description box also. You can download all the PDF files of my notes from there.